Okay, next what we are going to discuss is the pressure exerted by gases. Pressure exerted by gases. Now, in this video lesson, we will be mostly concentrating understanding the theory part of it, and whereas the questions are concerned, any reasoning question or any numerical problems, then we will take up in the next video lesson. Okay? So, the pressure exerted by gases, we already know that kinetic theory of gases has already helped us a lot in understanding that gases also exert pressure, not only in vertically downward direction, but they also exert pressure on the walls of the container. How do they do it? Like for example, if we have this container, the gaseous molecule would be away from each other, and let's say there is a piston here. ठीक है, तो ये इसको escape करने से gases को रोकता है. Now actually there are, let's assume there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Sorry, 7 molecules of gases which are moving randomly. At some given time. किसी का कुछ पता नहीं है कि वो मोशन कभी किस तरफ कर रहा है, zigzag मोशन. ठीक है, तो एक तो ये प्रेशर इस तरफ लगेगा नीचे की तरफ इसके वेट के कारण. दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स जो है इन देयर रैंडम मोशन दे वुड हिट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो whenever they hit walls of this container, they apply force, and this force per unit area is the pressure exerted on the walls of the container. अभी आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के लिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. वो यहाँ पे भी टकरा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ, इधर, 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 कहीं भी टकरा सकते हैं. ठीक है, and this is the volume of the gas. ठीक है, जितना भी स्पेस था सिलेंडर में वो पूरे का पूरा गैस के इन 7 मॉलिक्यूल्स में ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि वो हर तरफ मूविंग है. सो दिस इज द टोटल स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस. नाउ व्हाट इफ वी bring this piston down. आप पिस्टन को नीचे लेके आइए. ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो 7 के 7 ही रहेंगे. But now the space in which this 7 molecules can move has been decreased. तो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया हमने. अभी भी ये रैंडम मोशन करेंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, zigzag मोशन भी जिसको कहते हैं. And now what would happen? आप सोच के देखिए कि ये जो collisions walls ऑफ कंटेनर पे हो रहे थे इस तरफ, अब इस वॉल पे जो नंबर ऑफ collisions हैं, क्या वो बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? Would they increase or would they decrease in this case? Certainly they would increase. ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी आपस में टकराएंगे और जल्दी जल्दी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे टकराएंगे. So that means by decreasing the volume, pressure increases. So pressure and volume, they are inversely proportional to each other.
So if you want to increase the pressure of the gas, you need to decrease its volume, ताकि molecules पास आ जाए और वो molecules जो हैं walls of container पे faster टकराएं। ठीक है, जो वो faster टकराएंगे, collisions ज़्यादा होंगी और यहाँ पे force per unit area, which is pressure, would be more. Okay, so this is how we studied about that gases also exert pressure. Now we know we have gases all around us. Earth के surface पे हम देखें तो we inhale oxygen, we exhale gas which has more percentage of carbon dioxide. I cannot say that we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide only. We inhale air which is rich in oxygen, and we exhale air which has more percentage of carbon dioxide than before. ठीक है, तो ये बायोलॉजी में है, which you would understand. Now, तो gases are all around us. ठीक है, तो हम क्या define करते हैं एक term which is called atmosphere. So the thick envelope of air surrounding the Earth's surface is called atmosphere. So all the air which is around us, which is around the Earth's surface, which is surrounding the Earth's surface, it is called atmosphere. ठीक है, तो आसपास अगर गैसेस हैं अर्थ के सरफेस पे, तो वो गैसेस भी अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, फोर्स कोलिजन्स होगी। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। दैट प्रेशर which is exerted by atmosphere on earth surface is called atmospheric pressure. ठीक है, तो atmospheric pressure का मैंने आपको पहले ही बताया था, it is measured in atmosphere और उसका जो यूनिट होता है वो ATM। ठीक है, हमने किया था पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देयर SI यूनिट। Atmosphere is another unit of pressure. Remember, I gave you the conversion as well, where 1 atmosphere is 1.013 into 10 raised to the power 5 Pascal, or approximately 1 lakh pascals. ठीक है, और इतना ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हमने 1 एटमॉस्फेयर क्यों लिया है? 1 atmosphere is the pressure exerted by the gases surrounding the Earth's surface on 1 meter square area of Earth's surface. I'll give you the definition in the next video lesson in writing as well, but for understanding, the pressure exerted by atmosphere on 1 meter square of Earth's surface is called 1 atmosphere. 1 atmosphere, SI यूनिट पास्कल, इनके बीच में रिलेशन क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1 lakh पास्कल्स इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। So next in line, we can talk about couple of experiments. Now, I told you that atmospheric pressure, atmosphere, पर हम real life में वो चीज़ feel क्यों नहीं करते? अगर मेरे पे pressure लग रहा है, तो मुझे feel क्यों नहीं हो रहा? Why I'm not feeling it? Now the reason for that is human body consists of various fluids. We have blood, और भी fluid रहते हैं अपनी body में, and air which is present inside the lungs. ये अपनी body के अंदर से opposite direction, मतलब बाहर की तरफ, outward direction में pressure जैसे अपने body पे ऐसे act करेगा। ठीक है, normally यहाँ पे ऐसे normally, इस तरफ ऐसे normally। ठीक है, तो body के अंदर से ये fluid हो गया, and oxygen which is present in lungs वो outward direction में pressure exert करते हैं,
and they are equal, opposite, they cancel out each other and we don't feel a thing. ठीक है, हम एडजस्ट कर लेते हैं. But sometime what happens if we go to mountains? Now what happens, as we have already discussed, the density of air decreases in mountain. Density of air decreases. So when the density of air decreases, pressure of air या atmospheric pressure decreases as we go up and up. ठीक है, माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, पर अपनी बॉडी में जो फ्लूइड और लंग्स में जो एयर है वो वैसे की वैसे है. तो कई बार क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर प्रेशर बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है एंड दिस डिफरेंस इज नॉट जीरो. तो उसकी वजह से हमें वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. ठीक है, अब and it is hard to breathe in as well because the density of air is less, oxygen is less, and also the pressure is less of oxygen. ठीक है, so we need to carry oxygen cylinder. अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे हम कर सकते हैं ये रियलाइज करने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सच में होता है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, I'll be working on this experiment in the lab as well for you. तो आप ऐसे अगर ग्लास टम्बलर लेते हैं, ठीक है, एक हमने ग्लास टम्बलर लिया, एक ग्लास ले लिया, उसके ऊपर आप ऐसे कार्डबोर्ड रख लीजिए. उसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड चिपका देंगे. ठीक है, उसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड आता है. तो सिंपली आपने एक ग्लास लिया, आप उसको वाटर से फिल कर लीजिए पूरा टॉप तक अप टू द ब्रिम एंड प्लेस अ कार्डबोर्ड. ठीक है, जेंटली कुछ ऐसे मान लीजिए ये आपका ग्लास टम्बलर है एंड दिस इज योर कार्डबोर्ड. ठीक है, आपने पूरा भरा हुआ है ग्लास को. अब आप धीरे से क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड को यहां से थोड़ा सा प्रेस करके रखना है दूसरे हाथ से और इसको ऐसे इन्वर्ट कर लेना. ठीक है, अब ये इन्वर्ट हो गया, नीचे से आपने ऐसे हाथ रखा होता है उस कार्डबोर्ड के ऊपर. ठीक है, अब आइडियली तो हमें पता है कि ये कार्डबोर्ड नीचे गिर जाना चाहिए, पर अभी गिर नहीं रहा क्योंकि हमने हाथ रखा हुआ है. ठीक है, धीरे से इस हाथ को धीरे 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 आप स्लोली रिमूव करते रहिए और आप देखेंगे कि कैसे स्लोली रिमूव कर रहे हैं. ये ग्लास, ये कार्डबोर्ड और ये कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिर रहा. हाउ कुड दैट हैपन? उसकी क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है? एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है कि जैसे अभी हमारा ग्लास टम्बलर है, इसके ऊपर अभी ये सब तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, तो ये ऊपर है, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. ठीक है, अब अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पर हमने भी होल्ड करके रखा हुआ है. तो जैसे जैसे आप जेंटली छोड़ते हो तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हो. तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस. तो ये टम्बलर उल्टा हो गया, ये कार्डबोर्ड यहाँ पे है. नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब देखिए यहाँ पे हमने वो लिया हुआ है
तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कार्डबोर्ड को यहां से हिलने देगा एंड द वाटर इज नॉट एबल टू कम आउट। ठीक है, नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन लुक एट। आपके पास एक कैन, वी हैव अ कैन, ठीक है, सेम कैन, टिन कैन दैट वी यूज। लेट्स फिल इट विद सम वाटर। ठीक है, वो एम्प्टी था, हमने उस वाटर ऐसे डाल दिया। अब यहाँ पे ये स्पेस है विच इज फिल्ड बाय एयर, तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है। ठीक है, नाउ व्हाट, दिस इज द लिड, अभी खुला है। ठीक है, अभी क्या होगा, दिस इज द बर्नर। एज वी स्टार्ट हीटिंग दिस वाटर, द वाटर वुड स्टार्ट बॉइलिंग और ये स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। एंड एज वी आर हीटिंग, दिस एयर वुड एस्केप फ्रॉम दिस लिड। ठीक है, तो सिचुएशन अपने पास कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह की। अब हमने इसको हीट करना बंद कर दिया। अब सिचुएशन क्या होगी कि एयर एस्केप्स आउट ऑफ दिस वाटर, सम ऑफ द वाटर गेट्स बॉइल्ड एंड कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और एयर की जगह यहां पे स्टीम आ, तो यहां पे अभी स्टीम है एंड दिस इज वाटर। एयर हैज मूव्ड आउट, नाउ वी हैव क्लोज्ड द लिड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर से इस कंटेनर के ऊपर ऐसे कोल्ड वाटर का स्प्रे किया, कोल्ड वाटर। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन, यहां पे जो टिन कैन है उसमें कुछ लिक्विड है, जैसे आप टिन कैन ओपन करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें से कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है पी लेते हैं। नाउ इट इज हाफ। आप नोटिस करेंगे कि टिन कैन की शेप, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। ठीक है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से, पर दिस वाटर आपका कोल्ड ड्रिंक और एयर, अब एयर आ गई ना उस पर, जैसे जैसे आप पीते जा रहे हैं उसके अंदर एयर आ गई, ये इसको बैलेंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ लगाते हैं प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज बैलेंसिंग दैट? वाटर प्लस एयर। अब यहां पे हमने जब हीट किया, एयर एस्केप्ड आउट, एयर चली गई, और वाटर जो बचा था उसमें से कुछ वाटर स्टीम बन गया, तो यहां पे आ गया। अब यहां पे भी आप देखेंगे कि वाटर और स्टीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं। पर नाउ थर्ड स्टेप में हमने भी स्टार्टेड पोरिंग, एवरीथिंग इज फाइन टिल दैट स्टेज। फिर हमने कोल्ड वाटर यहाँ पे स्प्रे करना शुरू कर दिया। कोल्ड वाटर जैसे हमने स्प्रे किया, व्हाट वुड हैपन टू दिस स्टीम व्हिच इज प्रेजेंट हियर? इट वुड कूल डाउन एंड दिस स्टीम वुड कन्वर्ट अगेन इनटू लिक्विड वाटर। तो ये कंटेनर जो है आपका, इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा आपका? लिक्विड वाटर, और ये स्पेस क्या हो जाएगा? खाली, ये बन जाएगा वैक्यूम। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाहर उतने का उतना ही है, but this water is no longer sufficient to balance that atmospheric pressure. Hence, the atmospheric pressure being more, ये इस कैन को ऐसे क्रश कर देगा। तो ये कैन की शेप जो है वो थोड़ी बिगड़ जाएगी, वो क्रश हो जाएगी। Why? Because of atmospheric pressure.
दिस इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो ग्लास के अंदर जब आप उल्टा करते हैं वो कार्डबोर्ड जो है वो नीचे नहीं गिरता, जबकि ग्रेविटी की वजह से पानी को भी बाहर निकल जाना चाहिए था और वो कार्डबोर्ड भी नीचे गिर जाना चाहिए था, बट इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कार्डबोर्ड को उसी पोजीशन में रहने के लिए मजबूर करता है और वो पानी को भी बाहर नहीं निकलने देता ग्लास से। सो दीज आर द प्रूफ्स, ठीक है। अब रिमेंबर नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपनी डिफरेंस देख लिया करें। अब अगर कहीं डिफरेंस हो, एक जगह होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरी जगह होगा कि प्रेशर को किस पे लग रहा है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट समटाइम द स्टूडेंट्स स्टार्ट्स टू ब्लीड, नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है उनका, स्पेशली ड्यूरिंग समर टाइम। नाउ व्हाट हैपेंस inside our body, if the pressure increases, ब्लड का प्रेशर अगर इंक्रीज कर जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो, ठीक है, तो हाई प्रेशर जहां पे होता है वहां से फ्लूइड की मूवमेंट जो है लो प्रेशर की तरफ स्टार्ट हो जाती है। नाउ प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज हाई, आउटसाइड इट इज लो, सो द ब्लड फ्रॉम नोज अगर ज्यादा इंटेंस हो जाए, जैसे आप स्पेस में जाते हो, स्पेस में देयर इज वैक्यूम, देयर इज जीरो प्रेशर, दैट मीन्स देयर इज नो एयर, सो हेंस प्रेशर इज जीरो, ठीक है। तो हमारी बॉडी अगर हम ऐसे ही चले जाए नॉर्मली जैसे है, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स दे वेयर स्पेशल काइंड ऑफ सूट्स व्हेन दे आर वेंचरिंग आउट इन स्पेस, ठीक है। पर अगर हम ऐसे ही चले जाएं तो क्या होगा ये कि अपनी बॉडी के इनसाइड जो प्रेशर है वो ज्यादा है, बाहर तो जीरो है, सो द फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी, ब्लड वगैरह जो है वो स्टार्ट ओजिंग आउट फ्रॉम नोज, ईयर्स, आईज एंड वी वुड डाई इन अ वेरी बैड वे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम वो सूट्स पहनते हैं एस्ट्रोनॉट्स वाले। उस एस्ट्रोनॉट वाले सूट से क्या होता है, आप देखेंगे कि वो एस्ट्रोनॉट वाला सूट जो है इतना स्पेस आगे होता है हमारी बॉडी और सूट का, जैसे यहाँ पे एयर होती है ताकि हमारी बॉडी ये फील कर सके कि मेरे बॉडी के बाहर प्रेशर और बॉडी के अंदर प्रेशर इक्वल और ऑपोजिट रह सके। पर अगर कहीं सूट जो आपका एस्ट्रोनॉट सूट है कहीं से फट जाए और इन केस इट गेट्स कट, then this air which was protecting me would go out into the space and again the same thing would happen. Pressure inside the body is more, outside it is less and we may die, ठीक है। So the same thing happens if we are going to mountains. Mountains में प्रेशर कम होता है, हमारी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा होता है, so we need to be careful and we need to wear special suits if we are going up. Even on the mountains, we need to be careful about this thing. If we go deep under the sea, तो उसमें भी यही हमने पढ़ा था कि जैसे से आप नीचे जाते हैं, क्योंकि वो तो लिक्विड प्रेशर की वजह से है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो तो सरफेस ऑफ वाटर पे लग रहा है, तो जितना सरफेस पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही अंदर है, तो अंदर तो सिर्फ लिक्विड प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो वी वेयर स्पेशल सूट्स, नहीं तो अगर हम वैसे ही जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और उस प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी क्रश हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेशर का डिफरेंस ये समझना जरूरी है कि अगर प्रेशर का डिफरेंस हो तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो लिक्विड है, फ्लूइड है, गैसेस है या कोई भी लिक्विड जो है वो मूव करता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक रबर सकर्स हम यूज करते हैं, जैसे ग्लास वगैरह को निकालना हो या करना हो, तो वो रबर सर्कल जो है वो हम ऐसे बोर्ड, जैसे बोर्ड है, बोर्ड नहीं है ये ग्लास है, तो रबर सर्कल को अगर हम ऐसे लगाते हैं तो ऐसे वो इससे चिपक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए स्टिकर्स वगैरह जो आप फ्रिज अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर या अलमीराज के ऊपर जो आप लगाते हैं वो उससे चिपक जाते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ स्टिकर्स देयर आर अवेलेबल, एक तो मैग्नेटिक होते हैं, वो मैग्नेटिक होने की वजह से
पर जो दूसरे स्टिकर्स हैं वो उससे चिपके कैसे रहते हैं, जो नॉर्मल स्टिकर्स आप यूज करते हैं। तो व्हाट हैपन्स, ये मान लीजिए कि आपका स्टिकर है, ठीक है, विच वी वांट टू पुट इट ऑन दिस अलमीरा और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो होता गया है कि मैं ऐसे ऐसे लेके जा रहा हूँ, अभी मेरे हाथ मतलब स्टिकर में और अलमीरा में यहाँ पे एयर है, मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ अब एयर कम होती जा रही है, तो एयर कम होती जा रही है, और ये वाले जो स्टिकर्स होते हैं दे एक्ट एज सकर्स। तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे जाते हैं यहां से जो इनके बीच में स्टिकर और अलमीरा के बीच में एयर है, ये उसको सक कर देते हैं। अभी यहाँ पे जब स्टिकर यहाँ पे था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लगेगा और यहाँ से लगेगा, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे आप जाते हैं यहाँ पे आपने इसको ऐसे लगा दिया, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से तो लग रहा है, उधर से है नहीं बैलेंस करने के लिए, उसकी वजह से वो उसके साथ चिपका रहता है। तो सेम गोज फॉर रबर सकर्स विच आर यूज्ड ऑन ग्लास, ठीक है। तो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। कोई भी अगर सकर्स मतलब की बात होती है सरफेस पे कैसे चिपका रहता है, सो दिस इज द आंसर दैट वी गोट, ठीक है। नाउ सम मोर इफेक्ट्स दैट वी कैन स्टडी बेस्ड ऑन दैट। हैंड पंप जो हम यूज करते हैं अपने विलेजेस में होते हैं, या आजकल तो यूज ज़्यादा होते हैं, तो हैंड पंप्स थे, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल कि वो लो प्रेशर हाई प्रेशर, और नीचे से जो पानी है फ्रॉम द ग्राउंड हाई प्रेशर वहाँ पे हो जाता है, ऊपर हम जब उसको उठाते हैं तो लो प्रेशर हो जाता है, तो उसकी वजह से मूवमेंट होती है, वो नीचे से ऊपर आ जाता है। इंक को फिल करना, जैसे आप फाउंटेन पेन या कोई भी पेन यूज़ करते हैं, इंक पेन यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको स्क्वीज करते हैं, सिरिंजेस में भी हम ऐसा ही करते हैं, पहले आप उसको क्या करते हो, ऐसे स्क्वीज कर देते हैं। जब आप उसको स्क्वीज करते हैं सिरिंज को, तो जो एयर होती है पहले आप निकाल देते हैं, फिर आप उसको इंक पॉट में या उसको उसमें डाल देते हो, फिर आप उसको वापस खींचते हो। जब आप खींचते हो उसको वापस, ठीक है, या आप स्क्वीज करते हैं अपने फाउंटेन पेन, देयर आर टू टाइप ऑफ पेन्स अवेलेबल, एक तो वो जो है थोड़ा विड्रॉ करना पड़ता है, और सेकंड जो होता है वो स्क्वीज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि अंदर उसकी स्टेम में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इंक पॉट से जो इंक है वो फटाफट, क्योंकि वो हाई प्रेशर में होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो उसमें आ जाती है। नाउ इन्फ्लेटिंग ऑफ बलून्स, जो हमने बात की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह या वो चीज जो है, जो बलून का इन्फ्लेशन है वो भी इसी की वजह से, ठीक है। जैसे बलून है, अभी हम यहां से एयर ब्लो कर रहे हैं, वी आर ब्लोइंग एयर। जैसे आप एयर ब्लो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दरअसल यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप एयर बलून के अंदर फेंकते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो वो रैंडमली मूव करेंगे और सरफेस से कोलाइड करेंगे। ये जो कोलिजन होता है उसकी वजह से इस पे सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से वो फूटना शुरू होता है। प्रेशर ज्यादा रहेगा, वो फूलता रहेगा। इफ यू केप्ट ऑन ब्लोइंग एयर, इट कीप्स ऑन इन्फ्लेटिंग, ठीक है। इवन लिजर्ड जो है, कहा जाता है कि लिजर्ड जो वॉल्स के ऊपर स्टक करके रह जाती है, उसका भी रीजन यही है। उसके जो पैर हैं वो सर्कल्स की तरह एक्ट करते हैं, वो दीवार पे आ जाते हैं और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको गिरने नहीं देता, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. I hope you enjoyed the video. Next video we'll discuss the questions.